Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home, and I hope that you have gone through all the previous current affairs lectures, which is very relevant to what we are going to learn today. So today is our current affairs lecture number 45, and the first topic that we are going to look into today is uniform minimum age for मैरिज। तो देखिए, आपको पता है कि इंडिया में लड़कियों के लिए जो शादी की एज है दैट इज 18 ईयर्स एंड लड़कों के लिए जो शादी की एज है मिनिमम लीगल एज दैट इज 21 ईयर। सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू एग्जामिन अ प्ली to transfer to itself cases pending in the Delhi and Rajasthan High Courts to declare a uniform minimum age for a marriage. So now Supreme Court has a right to transfer the cases to itself. Okay, so ये जो राइट है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया है कि दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्ट में जितने भी केसेस ऐसी प्ली के साथ जुड़े हुए हैं जो यूनिफॉर्म मिनिमम एज के इशू को एड्रेस करेंगे उनको वो खुद सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप अ कमिटी टू रिकंसीडर द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन विच इज करेंटली 18। सो मैनी जो सोशलिस्ट है दे आर सेइंग कि फॉर वुमेन आल्सो द एज शुड बी 21। So a bench led by Chief Justice of India. So who is our Chief Justice of India right now? He is Sharad Arvind Bobde. So CJI issued a notice to the government on a plea which was filed to secure gender justice, gender equality and dignity of women. The plea sought a direction to the union government to remove the anomalies in the minimum age of marriage and make it gender neutral, religion neutral and uniform for all citizens. तो ये एक बात इस प्ली में कही गई है कि क्यों लड़कियों को जल्दी शादी करने की छूट दी जा रही है। इट शुड बी वुमेन की डिग्निटी वहाँ पे सिक्योर होनी चाहिए। हो सकता है कि 18 साल में जब हमने लीगल एज रखी है तो आज भी हमारी सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो ये है कि लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए और 18 साल होते ही उसकी शादी करा देनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लॉस है वो उन लड़कियों को हो रहा है जिनको आगे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है और फिर भी ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर उनकी शादी करवा दी जाती है। वेरियस लॉज स्टेट दैट द मिनिमम एज टू गेट मैरिड शुड बी 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर men. So this is as of now the legal age for men and women respectively 21 and 18 years. The Supreme Court has the power under Article 139A to transfer the cases to itself involving the same or substantially the same questions of law pending before two or more high courts. So under the Article 139A, Supreme Court is given this power that it can transfer the cases to itself involving same or substantially the same questions of law pending before two or more high courts. तो यहाँ पे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में सेम प्ली की गई थी, राजस्थान हाई कोर्ट में भी सेम प्ली की गई थी एंड विच इज स्टिल पेंडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इसको अपने हाथ में ले लिया है और सेंटर से जवाब मांगा है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द डिफरेंट एजेस फॉर मैरिज वायोलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी which has been given under Article 14, protection against discrimination Article number 15 and the dignity of life Article number 21 of citizens and went against India's commitment under the Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. तो सीडो का जो हमने ट्रीटी साइन किया है, कन्वेंशन साइन किया है, उसका भी ये वायोलेशन करता है। ऐसा प्ली करने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उनको लगता है एंड दैट्स व्हाई द प्ली हैज बीन फाइल्ड इन दी different high courts. So current laws related to marriages in India. So for Hindus, the Hindu Marriage Act 1955 sets 18 years as the minimum age of marriage for the bride and 21 year as the minimum age for the groom. तो लड़की अगर है तो उसके लिए 18 साल, लड़का अगर है तो उसके लिए minimum age is 21 year. However, child marriages are not illegal even though they can be declared void at the request of the माइनर इन दी मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज अभी भी इलीगल नहीं है, बट अगर माइनर को लगता है कि
इट शुड बी वॉइड, इट शुड बी नल, तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा. इन इस्लाम द मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड. तो जो इंसान प्यूबर्टी अटेन कर चुका है, चाहे वो 18 साल का नहीं भी होगा, तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा इन इस्लाम. द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन of Child Marriage Act 2006 also prescribe 18 and 21 years as the minimum age of consent for marriage for women and men respectively. Pros of increasing marriageable age for girls and making it uniform. क्या दलील दी जा रही है, क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है टू इंक्रीज द एज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज फ्रॉम 18 years to 21 years. ओके, सो एक हो गया सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट्स. Increasing the legal age for the marriage of a woman has enormous benefit on social and economic front, including lowering of maternal mortality ratio. जब जल्दी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी मौत के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, राइट. देन इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल्स. न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेंगे अगर उसकी लेट शादी होगी, तो वो उसका बॉडी उतना केपेबल हो जाएगा कि वो अपने आने वाली जनरेशन को अच्छे से फीड कर पाएगी. On the financial front, opportunities will be opened up for women to pursue higher education and careers and become financially empowered, thus resulting in a more egalitarian society. राइट, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर उनको पढ़ने दिया जाएगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद अगर उनकी शादी कराई जाएगी, तो इन केस अगर कुछ भी होता है तो दे विल बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट. उसको अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड पे या हस्बैंड की फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके ऊपर पड़ेगा. More female labor force participation. Increasing the marriage age will push the mean marriage age higher and will lead to more females doing graduation and hence improving the female labor force participation ratio. The percentage of females doing graduation will increase by at least 5 to 7 percentage points from the current level of 9.8%. देखिए, तो जो करंट परसेंटेज है वो 9.8% गर्ल्स आर डूइंग ग्रेजुएशन, जो रेशियो बढ़े जाएगा 15 to 16% इफ द मैरिज एज इज increased from 18 to 21 years. The benefit for both men and women will gain economically and socially by marrying when they are more than the legal age, but added that the urge of the woman is much higher as they always get a higher payoff by becoming financially empowered to take decisions. तो यहाँ पे दोनों को फायदा होगा, राइट. लड़के को भी फायदा है, लड़की को भी फायदा है, वंस दे बिकम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट. और अगर उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे तो दोनों को फायदा होगा. कॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग इट यूनिफॉर्म. सो मिनिमम इज नॉट मैंडेटरी. मिनिमम एज ऑफ मैरिज डज नॉट मीन मैंडेटरी एज. It only signifies that below that age there could be a criminal prosecution under the child marriage law. तो वो लीगल एज है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी एज. आप कर सकोगे, बट अगर उसके नीचे अगर आप शादी करते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है अंडर द चाइल्ड मैरिज लॉ. Rights of the girls are threatened. So increasing the age of marriage to 21 years would mean that girls have no say in their personal matters until they are 21. तो ये एक दूसरी साइड यहाँ पे सोचनी होगी सुप्रीम कोर्ट को कि 21 साल तक उसके खुद की जिंदगी के लिए वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगी. द एलिमेंट्री राइट that the Convention of the Right of Children of the United Nations bestows upon minors, the right to be heard, the right for their views to be considered, will be denied to girls right up till 21 beyond एडल्टहुड. तो एडल्टहुड तो 18 ईयर्स में उसको मिल जाएगा. स्टिल उसको 21 ईयर्स तक अगर उसका कोई बात रखनी है अपनी सोसाइटी के सामने या फैमिली के सामने तो वो नहीं रख पाएगी. एंड here we are talking about both urban and non-urban areas, right? It is not like that कि अगर आप मुंबई में या दिल्ली जैसे बड़े सिटी में रह रहे हो तो लड़कियों की जो सिचुएशन है वो वहाँ काफ़ी अच्छी है. No, it is not like that. It is same across all the levels in India. So exploitation of law by parents. The child marriage law has been used by parents against eloping daughters. It has become a tool for parental control and for punishment of boys or men whom girls choose as their husbands. तो हम
आए दिन ये चीज़ देखते रहते हैं कि लड़की के घर वाले जो है उन्होंने लड़कों के घर वालों को नुकसान पहुंचाया या लड़कों को नुकसान पहुंचाया, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है इन इंडियन सोसाइटी. मोस्ट केसेस दैट आर टेकन टू कोर्ट आर सेल्फ अरेंज्ड marriages, and only one third of the cases relate to arranged marriages, which are sometimes brought by parents or husbands to dissolve or to nullify marriages that have broken down because of domestic violence, dowry or compatibility issues. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि 18 साल में विदाउट एनी प्रियर एंगेजमेंट्स लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है और उसके बाद लड़का लड़की को पता चलता है कि वी आर नॉट कंपैटिबल इनफ टू बी विथ ईच अदर, और वो रिजल्ट होता है डिवोर्स में. सो सोशल वैलिडिटी ऑफ मैरिजेस, even if the law declares a marriage before the specified age as void, in the eyes of the community arranged marriages will have a social validity, and this is fact. Okay, we already know that अगर कोई आज भी अगर लव मैरिज करता है तो उसको थोड़ा डेरोगेटरी नजरों से देखा जाएगा. दिस worsens the condition of the girls who are widowed even before reaching the new legal age for marriage. Increased female infanticides, so moreover raising the female marriage age in the countries that have high son preference and high poverty may have the unintended consequences of increasing the prevalence of a female infanticide and sex selective abortion. तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बढ़ सकती है. इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सो ऑल्टरिंग द थिंकिंग, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया. सो एनी ग्राउंड लेवल चेंज विल ओनली हैपन व्हेन द साइक ऑफ पीपल विल ऑल्टर. नो लॉ इज़ इफेक्टिव इफ चेंज डज नॉट अकर फ्रॉम विद इन. जब तक सोसाइटी अपने आप को खुद से नहीं बदलेगी, प्रोएक्टिवली उस पर काम नहीं करेगी, चाहे हम कितने भी लॉज लेकर आ जाए, लड़कियों की जो सिचुएशन है वो आने वाले 50 सालों में भी नहीं सुधरने वाली. और अगर चाहे तो वो एक दिन में भी सुधर सकती है. तो समाज को, सोसाइटी को ये सोचना होगा. Erasing the stereotype, increasing the legal age for marriage is a must, even legally, as it should get us out of the stereotype mindset that women are more mature than men of the same age and therefore can be allowed to marry sooner. तो ये जो थिंकिंग है वो हमें यहाँ पे बदलना पड़ेगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस. सो क्यों न्यूज़ में है? So recently the Fishing Cat Conservation Alliance started a worldwide campaign to raise awareness for conservation of fishing cats. The Fishing Cat Conservation Alliance is a team of conservationists, researchers and enthusiasts working to achieve functioning floodplains and coastal ecosystems that ensure सर्वाइवल ऑफ द फिशिंग कैट. अब देखिए क्यों फिशिंग कैट को सर्वाइवल की ज़रूरत है, क्यों उसको बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल, दैट वी विल बी लर्निंग इन अवर नेक्स्ट स्लाइड्स. सो साइंटिफिक नेम क्या है? प्रिनालुरस विवेरिनस. डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट. जो अपने नॉर्मल हाउस कैट होती है उससे डबल उसकी साइज होगी फिशिंग कैट की. द फिशिंग कैट इज अ नॉक्टर्नल एंड अपार्ट फ्रॉम फिश ऑल्सो प्रेज ऑन फ्रॉग्स, crustaceans, snakes, birds and scavenges on carcasses of larger animals. The species breed all year round. तो वो उसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो पूरे साल चलता रहेगा. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन क्लोज टू वाटर बॉडीज एंड आर एक्सीलेंट स्विमर्स. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फिशिंग कैट्स कहा जाता है. हैबिटेट उसका कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया में. सो फिशिंग कैट्स हैव अ पैची डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द ईस्टर्न घाट्स, दे estuarine flood plains, tidal mangrove forest and also inland freshwater habitats. Apart from Sundarbans in West Bengal and Bangladesh, fishing cats inhabit the Chilka Lagoon and surrounding wetlands in Odisha, Koringa and Krishna. तो ये सारे जो regions है इंडिया में वहाँ पे हमें fishing cats देखने को मिलेगा. Now what are the threats that are फॉर फिशिंग कैट्स? सो क्या क्या थ्रेट्स है? सो वेटलैंड डिग्रेडेशन, और वेटलैंड के बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं अबाउट द रामसार कन्वेंशन. देयर आर करंटली 42 Ramsar sites in India to prevent the wetlands for conservation of wetlands habitat. So wetlands degradation and
conversion for aquaculture and other commercial projects, sand mining along riverbanks, agriculture intensification resulting in loss of riverine buffer and conflict with humans in certain areas resulting in targeted hunting and retaliatory killings. प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? सो वो ऑलरेडी IUCN के रेड लिस्ट में उसको वल्नरेबल कहा गया है. डिस्पाइट मल्टीपल थ्रेट्स, द फिशिंग कैट वाज रिसेंटली डाउनलिस्टेड टू वल्नरेबल फ्रॉम एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट स्पीशीज असेसमेंट. तो देखिए IUCN के आपको एक दो क्वेश्चन IUCN से रिलेटेड, वेदर इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज, ये सारे सवाल आपको GPSC या UPSC के एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन हमारा जो एनालिसिस है उससे हमने देखा है कि होंगे ही होंगे. तो आपको याद रखना है कि फिशिंग कैट जो है इट इज नाउ डाउनलिस्टेड फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल. सो द करंट स्टेटस इन IUCN रेड लिस्ट इज वल्नरेबल. साइट्स का जो लिस्ट है उसमें उसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है. क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए हैं? सो रिसेंटली द फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस हैज इनिशिएटेड अ स्टडी ऑफ अ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिशिंग कैट इन द अनप्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. In 2012, the West Bengal government officially declared the fishing cat as the state animal and the Calcutta Zoo has 2 big enclosures dedicated to them. तो देखिए स्टेट लेवल पे भी उसको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम हो रहा है. इन ओडिशा many NGOs and wildlife conservation societies are involved in fishing cat research and conservation work. The fishing cat project launched in 2000 started raising awareness about the cat in West Bengal. तो क्योंकि सुंदरबन में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए सुंदरबन के आसपास के जो स्टेट है विच आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अगर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, तो ये लोग फिशिंग कैट के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिलिट्री कॉप इन म्यांमार. तो रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि म्यांमार में जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी से चुनी गई जो गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर वहाँ पे मिलिट्री शासन लगा दिया गया है, मिलिट्री रूल लगा दिया गया है और अगले 1 साल तक वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नल एंड वॉइड बना दिया गया है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया गया है बाय दी Myanmar military. So recently the Myanmar military has grabbed power in a coup, the third time in the nation's history since its independence from British rule in 1948. तो देखिए 1948 से अब तक 3 बार वहाँ पे मिलिट्री ने पावर को ग्रैब कर लिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जिसको हम कहेंगे. A 1-year state of emergency has been imposed and democratically elected leader Aung San Suu Kyi has been detained. तो आंग सान सू की वहाँ की स्टेट काउंसिलर की पोस्ट पर थी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन दोनों को नज़र कैद में रख दिया गया है, हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है. कोप इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ सडन, वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट. क्या क्या की पॉइंट्स है इसके? सो इन द नवंबर 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, सू कीज पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी दैट इज पॉपुलरली नोन एज NLD इन म्यांमार secured the majority of the seats. In the Myanmar's parliament, the military holds 25% of the total seats according to the 2008 military drafted constitution, and several key ministerial positions are also reserved for military appointees. तो देखिए 2008 में वहाँ की मिलिट्री ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था कि चाहे कितनी भी डेमोक्रेसी आ जाए 25% ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट विल ऑलवेज बी रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री, और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वो भी मिनिस्ट्री के लिए ही वहाँ पे रखे जाएंगे. When the newly elected Myanmar lawmakers were to hold the first session of parliament in 2021, the military imposed a state of emergency for 1 year, citing massive voting fraud in the parliamentary election. और देखिए यहाँ पे आयरनी की बात यह है कि मिलिट्री ने खुद ये इलेक्शंस करवाए थे और
खुद के करवाए हुए इलेक्शन में मिलिट्री को वोटिंग फ्रॉड अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एनएलडी जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी, विच इज द बिगेस्ट पार्टी इन म्यांमार, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ग्लोबल रिएक्शन क्या क्या है? तो देखिए, जब भी कोई देश में से पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन होती है तो सारे कंट्रीज अपने अपने हिसाब से उसको सपोर्ट करेंगे या उसका अपोज करेंगे। और क्योंकि म्यांमार इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाई फॉर इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्री भी है, तो इसके लिए इंडिया के ऊपर इसका काफी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। सो ग्लोबल रिएक्शन क्या मिला हमें यहाँ पे? तो चाइना ने ये बोला है कि ऑल पार्टीज इन म्यांमार विल प्रॉपरली हैंडल देयर डिफरेंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। ओके, अब देखिए, चाइना का काफी बड़ा हाथ हो सकता है, ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें कहते हुए दिख रहे हैं। यूएसए ने क्या कहा है? द यूएसए प्रेसिडेंट थ्रेटन्ड टू रीइंपोज सैंक्शंस ऑन म्यांमार फॉलोइंग अ कोप बाय द कंट्रीज मिलिट्री लीडर्स एंड कॉल्ड फॉर अ कंसर्टेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू प्रेस देम टू रिलिंक्विश पावर। तो यूएसए ने बड़ी स्ट्रांगली कहा है कि मिलिट्री की पॉलिटिकल अफेयर्स में ऐसी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर मिलिट्री वहां पावर में रहती है तो म्यांमार के ऊपर सारे सैंक्शंस यूएसए वापस लगा देगा। क्योंकि म्यांमार आसियान का भी मेंबर है, आसियान कंट्रीज ने कहा है, आसियान करंट चेयर ब्रुनेई, तो ब्रुनेई इज द 2021 चेयरमैन ऑफ आसियान कंट्रीज, कॉल्ड फॉर अ डायलॉग अमंग पार्टीज, रिकॉन्सिलिएशन एंड द रिटर्न टू नॉर्मलसी। Singapore, Malaysia and Indonesia expressed concern, while Thailand, Cambodia and the Philippines noted that this was Myanmar's internal affair। जैसे कि इंडिया हमेशा कहता है कि जम्मू कश्मीर पे या सीए पे या फार्मर्स प्रोटेस्ट पे किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। तो वही चीज़ ये सारे कंट्रीज कह रहे हैं कि इट इज़ म्यांमार्स इंटरनल अफेयर्स, बट इंडिया ने अपना रिएक्शन यहाँ पे दे दिया है। सो इंडिया सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन म्यांमार। ओके, इंडिया हमेशा किसी भी देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो इंडिया हमेशा डेमोक्रेटिक वे में उसको सपोर्ट करता है। और इंडिया क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़ी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए इंडिया ये चाहता है कि कोई भी जगह डेमोक्रेसी से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाया जा सकता है। सो इंडिया सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन म्यांमार। Though India has expressed deep concern over recent developments in Myanmar, cutting off from the Myanmar military is not a viable option as India has significant economic and strategic interest in Myanmar and its neighborhood। तो क्योंकि इंडिया खुद का म्यांमार उसका नेबरिंग कंट्री है, इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हमारे काफ़ी बड़े ट्रेड रिलेशन हैं म्यांमार के साथ। तो अगर म्यांमार में कुछ भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो उसका सीधा सीधा अगर असर इंडिया पे पड़ता है, एंड इंडिया डज नॉट वांट कि उसका बुरा असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़े पोस्ट कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। Okay, so India's strategic interests in Myanmar and its relation with Myanmar military। So India's relationship with Myanmar military कैसे है? क्योंकि हमने जैसे आगे देखा कि 1948 से 3 बार वहाँ पे म्यांमार मिलिट्री ने इलीगली पावर को सेज कर लिया है। India's military diplomatic outreach to Myanmar became a cornerstone of its Act East policy। राइट, तो इंडिया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करना चाहता है तो वहां पे ये अब थोड़ा वो जो विजन है वो थोड़ा हटता हुआ हमें दिखेगा। On the eve of the recent visit of the Foreign Secretary Chief of the Army Staff to Myanmar in 2020, Myanmar handed over 22 Indian insurgents from across the border, and it was decided to ramp up the sale of military hardware to Myanmar, including 105 mm light artillery guns, naval gunboats, and more recently lightweight torpedoes। तो ये सारी चीजें हम म्यांमार आर्मी को बेचने वाले हैं। Recent examples of cooperation is that Myanmar has begun to vaccinate itself with the 1.5 million doses of COVID vaccine sent by India while putting China's 3 lakh doses on hold। तो देखिए, म्यांमार को भी चाइना की वैक्सीनेशन पे भरोसा नहीं है। चाइना ने उनको 3 लाख डोजेस दिए थे, बट म्यांमार ने
उनको जो 1.5 मिलियन डोजेस इंडिया की तरफ से दिए गए थे एज अ गिफ्ट, उनसे अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट किया है इन म्यांमार। इंडियाज इंटरेस्ट इन म्यांमार क्या है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंडिया हैज कल्टिवेटेड सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विथ म्यांमार विच इट सीज एज द गेटवे टू द ईस्ट एंड आसियान कंट्रीज। तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए आसियान कंट्रीज के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और अगर आसियान कंट्रीज में हमें जाना होगा, रिलेशन अच्छे बनाने होंगे, तो इंडिया म्यांमार को गेटवे टू द ईस्ट की तरह देखता है। और इसीलिए म्यांमार में काफ़ी सारे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स म्यांमार में इंडिया की मदद से चल रहे हैं। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्रूशियल स्टील पोर्ट इन म्यांमार रखेन स्टेट बाय 2021 इज कमिटेड। अब देखिए रखेन स्टेट के बारे में एक बार बात कर लेंगे यहाँ पे हम। म्यांमार का जो रखेन स्टेट है वो कोई पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2019 में पहली बार ये न्यूज़ में आया था, जब म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान जो है उनको धीरे धीरे करके, क्योंकि मिलिट्री का इंटरफियरेंस उनके ऊपर इतना बढ़ गया था, मिलिट्री का जो अत्याचार है वो उनके ऊपर इतना बढ़ गया था कि रोहिंग्या मुसलमान को वहाँ से भागना पड़ा। और रोहिंग्या मुसलमान जो है वो ये कोस्टल स्टेट है, रखेन स्टेट, तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब म्यांमार को बुद्ध की धरती माना जाता है, और क्योंकि बुद्ध की धरती उनको माना जाता है एज ऑफ टिल नाउ, ठीक है, उनको काफ़ी पीसफुल नेशन माना जाता था, राइट। बट इसके बाद काफ़ी सारे दुनिया के देशों के साथ उनके जो रिलेशन थे म्यांमार के, वो धीरे धीरे बिगड़ गए थे। ये जो रोहिंग्या मुसलमानों ने इलोप किया म्यांमार से, वो लोग बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका जैसे अदर कंट्रीज में अब इलीगली जाकर रह रहे हैं। इंडिया का स्टैंड म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान पे ये है कि इंडिया डज नॉट want to provide any kind of political asylum to this रोहिंग्या मुसलमान्स, ठीक है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि अगर रोहिंग्या मुसलमान्स को इंडिया में लाया गया तो वो इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को खतरा बन सकते हैं। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, तो वहाँ पे ये आंसर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, और आने वाले टाइम में उनको अगेन हैंडओवर कर दिया जाएगा म्यांमार को। बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमान्स को अपने यहाँ जगह दी है, बट नॉट टू देयर मेनलैंड बांग्लादेश। बांग्लादेश से 40 किलोमीटर दूर एक लोनली आइलैंड है जिसका नाम है भसान चार आइलैंड, वहाँ पर इन रोहिंग्या मुसलमान्स को बसाया जाएगा। और उसका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है ऑन दी ग्लोबल लेवल। आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो यू मस्ट नो अबाउट दिस इश्यू। India assists infrastructure projects such as the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway and the Kaladan Multimodal Transport Project। तो देखिए इंडिया असिस्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अब देखिए ये ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर और एक अपडेट है हमारे पास कि बांग्लादेश भी इस ट्राइलेटरल हाईवे में जुड़ना चाहता है। सो इंडिया एंड म्यांमार एंड थाईलैंड विल नाउ थिंक कि हाईवे को किस तरीके से बांग्लादेश से पास ऑन होकर देन म्यांमार में एंटर करवाया जाए। ओके, सो द कालादान प्रोजेक्ट विल लिंक कोलकाता टू स्ट्यू इन म्यांमार एंड देन फ्रॉम म्यांमार्स कालादान रिवर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। द टू कंट्रीज साइंड द लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट इन 2018 विच अलाउड bona fide travelers with valid documents to cross the border at two international points of the entry exit, और दो एंट्री एग्जिट पॉइंट का नाम है मोरे तामू एंड जोगथार री। तो यहाँ पर से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप क्रॉस बॉर्डर जा सकते हो, आ सकते हो। सिक्योरिटी के पर्पज से बात करें, सो इंडिया हैज़ बीन कंसर्न्ड ओवर सम मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन टेकिंग शेल्टर इन म्यांमार। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडियन नीड्स perpetual support and coordination from Myanmar for the maintenance of security and stability along its northeast border areas। तो क्योंकि म्यांमार की बॉर्डर हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इंडिया डज नॉट वांट कि म्यांमार में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है वो
किसी ना किसी तरह इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करे। और इंडियन आर्मी इज़ वेरी वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि वो जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है उसका असर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे नहीं होना चाहिए। रोहिंग्या इश्यूज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग सेफ, सस्टेनेबल एंड स्पीडी रिटर्न ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज फ्रॉम रेफ्यूजी कैंप्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए, इंडिया ने ये तो क्लियरली मना कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम इन इंडिया। अगर वो रेफ्यूजीज के तौर पर इंडिया में रह रहे हैं तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा म्यांमार को, बट इंडिया में उनको असाइलम नहीं दिया जाएगा, उनको शरण नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। Building on the progress made under the Rakhine State Development Program, India has recently proposed to finalize projects under Phase 3 of the program, including setting up of a skills training center and upgrading of agriculture mechanization. Investment. So with Indian investment of over 1.2 billion US dollar, Myanmar holds considerable importance than any other country in साउथ एशिया। हम साउथ एशिया में, क्योंकि म्यांमार हमारा नेबर भी है और हमें आसियान में अपनी जगह बनानी है, आसियान कंट्रीज में, दैट्स वाई म्यांमार हमारे लिए खास जगह रखता है। एनर्जी के सेक्टर में भी काफ़ी काम हो रहा है म्यांमार के साथ। द टू कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सपांडिंग पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन। Recently, India approved an investment of over 120 million US dollar in the Shue oil and gas project. तो देखिए, हर किसी कल्चरल टाइज है हमारे साथ, इकोनॉमिक टाइज है, ट्रेड के टाइज है। every in each and every field, India is trying to help Myanmar to become a better country. Way forward क्या होगा? So India should continue to engage with the present regime in Myanmar, working towards mutual development of people of both the countries, while it should support sharing experiences in constitutionalism and federalism to assist Myanmar in resolving the prevailing stalemate. तो देखिए, अब चल रहा है ये, उसके इंटरनल अफेयर्स में हम ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, दैट इज़ इंडिया स्टैंड। बट चाहे वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी पार्टी का या किसी भी फॉर्म का पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा होगा, इंडिया को अपने इंटरेस्ट पहले देखने हैं और साथ साथ ये इंश्योर करना है कि म्यांमार के साथ जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो वर्स्ट ना हो जाए आने वाले टाइम में, ड्यू टू दी इंटरनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन म्यांमार। तो चाहे वहाँ पे मिलिट्री काम कर रही है या ए पार्टी की गवर्नमेंट है या बी पार्टी की गवर्नमेंट है, इंडिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया को अपने इंटरेस्ट को कैसे फोकस किया जाए वो इंडिया को यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन अर्बन। सो इन द बजट 21-22, Jal Jeevan Mission Urban has been announced under the Housing and Urban Affairs Ministry to provide universal coverage of water supply to all households through the functional taps in all statutory towns in accordance with Sustainable Development Goal 6. तो जल जीवन मिशन, we already know this mission। तो पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है इन दी कैबिनेट, और वो जल शक्ति मंत्रालय का गोल ही ये है, द अल्टीमेट गोल ही ये है, फ्लैगशिप स्कीम है द जल जीवन मिशन, और उसका गोल ये है कि बाय 2024 ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया शुड हैव द फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई। नल से हर घर में जल पहुंचना चाहिए, हर घर जल via null. This is the idea. It complements the Jal Jeevan Mission Rural, which envisages a supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connections FHTC by 2024. तो इसी के साथ अर्बन स्कीम को भी जोड़ा गया, और उसका गोल क्या है? हर एक घर में 55 लीटर पानी प्रति इंसान प्रतिदिन पहुंचाया जाएगा नल द्वारा। क्या है ऑब्जेक्टिव जल जीवन मिशन अर्बन के, शहरी जल जीवन मिशन जिसको हम कहेंगे? सो सिक्योरिंग टैप एंड सीवर कनेक्शन टू ब्रिज द एस्टिमेटेड गैप ऑफ 2.68 crore अर्बन हाउसहोल्ड फंक्शन वाटर टैप कनेक्शंस, to provide 2.64 crore sewer connections seepage in 500 Amrit cities, rejuvenation of water bodies, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, वाटर सप्लाई का जो चैनल है
नगर पालिकाओं में या महानगर पालिकाओं में, तो उसको सुधारा जाएगा और उसको सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसको टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज किया जाएगा to augment sustainable freshwater supply and create green spaces and sponge cities to reduce floods and enhance amenity value through an urban aquifer management plan. Sponge city is a city that has capacity to mainstream urban water management into the urban planning policies and designs. Creating circular water economy to promote circular economy of water through development of the city water balance plan for each city, focusing on recycle, reuse of treated sewage, rejuvenation of water bodies and water conservation. तो क्या होता है सर्कुलर वाटर इकोनॉमी? तो जो सीवेज वाटर है उसको किस तरीके से रीयूज करके, रिजुविनेशन के थ्रू, हम बहुत सारे ऐसे काम है, इंडस्ट्री यूज़ है जिसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हर सिटी, हर टाउन को अपने लिए सोचना पड़ेगा, जिससे हम ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। Deploying latest technology. A technology submission for water is proposed to leverage latest global technologies in the field of water. Spreading mass awareness. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी स्कीम्स बना ले, अगर मैं हर रोज़ अपनी गाड़ी 4 व्हीलर धोने के लिए या 2 व्हीलर को वॉश करने के लिए पूरा पाइप से अगर मैं उसको वॉश कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द फॉल्ट एट माई एंड, सोसाइटीज़ एंड, कि मुझ में इतनी समझ नहीं है कि जो काम मैं 1 या 2 बाल्टी में कर सकता हूँ 10 या 20 लीटर में, उसके लिए मैं 200 लीटर पानी वेस्ट कर रहा हूँ जो बचाया जा सकता था, राइट। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन इज प्रपोज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमोंग masses about conservation of water. JJM looks to create a Jan Andolan for water, thereby making it everyone's priority. तो रेडियोस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि गवर्नमेंट की स्कीम बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर आने वाली पीढ़ी को आपको प्योर वाटर सप्लाई देना है तो आपको अभी से पानी बचाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वे फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. Payjal survection will be conducted in cities to ascertain equitable distribution of water, reuse of wastewater and mapping of water bodies with respect to quantity and quality of water through a challenge process. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इट शुड बी ए सोशल मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ना होकर हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन वाटर कंजर्वेशन के लिए होना चाहिए। Focus on strengthening urban local bodies. So by reducing non-revenue water to below 20%, non-revenue water is the difference between the volume of water put into a water distribution system and the volume that is billed to customers. Recycling used water to meet at least 20% of total city water demand and 40% for industrial water demand at state level. Promoting dual piping systems, raising funds through issuance of municipal bonds and rejuvenation of water bodies. तो इन सारी चीज़ों को लेकर, we have already discussed in our previous slides, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो लोकल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आने वाले समय में दुरुस्त किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। प्रमोटिंग पीपीपी मॉडल. क्या है पीपीपी मॉडल? सो इट इज पब्लिक प्राइवेट partnership model. In order to promote public-private partnership, it has been mandated for cities having millions plus population to take up PPP projects worth minimum of 10% of their total project fund allocation. Funding कैसे होगी? So for union territories, there will be 100% central funding. For northeastern and hill states, central funding for projects will be 90%. Central funding will be 50% for the cities with less than 1 lakh population, 1/3 for cities with 1 lakh to 10 lakh population and 25% for cities with million plus population. इस तरीके से सेंटर वहाँ पर पैसा देगा, बाकी का पैसा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपको अरेंज करना पड़ेगा। फंडिंग से आउटकम क्या होगा? सो फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स विल बी इन 3 tranches of 20 20:40:40 रेशियो।
Third installment onwards will be released based on outcomes achieved and credible exclusion will be exercised while funding. तो अगर आपने पहले कुछ phases में अच्छा काम किया होगा तभी आपको next phase की funding मिल पाएगी, otherwise it is not possible for the municipal corporations to get the funding. So this was your today's lecture. I hope every one of you have understood what is conveyed to you. If not, please let me know and we will clear your doubt as soon as possible. Till that time, stay home, stay safe. Thank you.